Good morning, everyone. Today we are going to continue our previous topic, that is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. In previous class, we have studied how we can convert a galvanometer into a high sensitivity ammeter. Alright, so in this class we are going to study how can we convert a galvanometer into a voltmeter. See, a voltmeter is a device for measuring potential difference across any 2 points in a circuit. As we know, it is always connected in parallel with the circuit element across which the potential difference is intended to be measured. Alright, so just because we are connecting parallel to the parallel to the circuit, the voltmeter which we are using, so a small part of the total current passes through the voltmeter, and so the current through the circuit element decreases. It generally happens because some part is consumed in the working of voltmeter. So we are actually not measuring the perfect or the exact value of the voltage when we use a simple voltmeter. We actually measure some reduced value, just because some part of the energy or the current is used up in process of voltmeter, process of voltage measurement. So this galvanometer reduces this drawback. It uses actually works as an ideal voltmeter which has a very high resistance. As we know from our class 10th knowledge that an ideal voltmeter must have very high resistance, just because we need zero current to pass through it and we need only the potential difference to be measured with that voltmeter. Alright, so we will use here a galvanometer having galvanometer resistance or the internal resistance of this galvanometer to be capital G. One very high value resistance R, it is high resistance. In previous class we have used a shunt resistance connected in parallel that was very low small value resistance, but this R is connected in series and we don't want the current to be passed through this part or this G, so we use very high or simply high resistance, so that zero current or very small current, that is full deflection current only, passes through this galvanometer. Alright, so we can write a galvanometer meter can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with this galvanometer with it. Alright, now consider it as terminal A and it as terminal B. This whole device will work as a voltmeter, means we can attach this in parallel to any of our circuits to measure this value of voltage or the potential difference. Here we are considering G is equals to resistance of galvanometer
IG, we will use IG as the full deflection current. I have told you earlier, the current with which galvanometer gives full deflection, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, किसी भी एक तरफ गैल्वेनोमीटर फुल मूव कर जाता है, गैल्वेनोमीटर का पिन. वी वांट टू चेंज और मेक दिस वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V volt. It is required range of voltmeter. Now next is, see, R is the high resistance connected in series, which I have already told you, जैसे मैंने पिछली क्लास में यूज़ किया था, शंट रेजिस्टेंस टू रिस्ट्रिक्ट आवर करंट IG to the करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर टू IG, दैट इज फुल डिफ्लेक्शन करंट. यानी गैल्वेनोमीटर से केवल उतना ही करंट पास हो जो उसकी फुल डिफ्लेक्शन करंट है. ज़्यादा अगर हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, गर्म होकर तार ओवरलोड कर जाता है. सो वी नीड ओनली दैट वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर which makes it a full deflection current, which restricts, R ऐसा चूज किया जो restrict करता है the current to IG, the full deflection current. Now as we can see here, if IG current is passing through it, मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने इतना लगाया कि बाहर कुछ भी करंट रही हो सर्किट में, अंदर इसके कितनी करंट जाती है, केवल IG. अब ये IG करंट पास हो रही है तो हमको पता है कि ये जो IG होगी, करंट होगी, ये किन दोनों रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, इस पे और इसके, यानी ये दोनों सीरीज़ में, इनके जोड़ पे डिपेंड करेगी. मान लीजिए V वोल्टेज बाहर अप्लाइड है ना, V वोल्टेज अप्लाइड है, वोल्टमीटर नहीं है, V वोल्टेज अप्लाइड है. इनके बीच का पोटेंशियल जो है, हम इसको ऐसे लगाना चाहिए मुझे, इनके बीच का पोटेंशियल इस पॉइंट के बीच का क्या है, V है. V वोल्टेज लगाने पे इसमें IG करंट बहती है. V हमारी क्या है, जो रेंज हमें बनानी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी अपनी जो रेंज हमें बनानी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करने पे इसमें कितनी करंट बहती है, इसकी मैक्सिमम करंट, जिस पे ये फुल डिफ्लेक्शन शो करता है. यहाँ मैक्सिमम की बात है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ क्या हो जाएगा, IG जो करंट है वो इस पोटेंशियल पे, इन दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में है इसके थ्रू पास हो रही है, यानी पोटेंशियल V डिवाइडेड बाई R प्लस G, जस्ट बिकॉज इट इज इन सीरीज. ऑल राइट, so we can say R plus G is equals to V by IG, और we can say कितना R चाहिए, this we want to calculate, so it is V by IG minus G. यानी सीरीज रेजिस्टेंस हमें कितना लगाना चाहिए कि करंट गैल्वेनोमीटर से IG पास हो, जब V वोल्टेज अप्लाई करें तो करंट IG पास हो, ठीक है, यही वो निकालना है हमको. तो ये कितनी हो गई, इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो गई. नाउ एज वी कैन से हाई रेजिस्टेंस R in series is that resistance when we apply resistance R, then the current through the galvanometer is IG, so full deflection, and the voltage connected is capital V. Now the scale हमको पता है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि जैसे वहाँ करंट था वैसे यहाँ वोल्टेज V पूरा लगा दिए तो करंट डिफ्लेक्शन कितना शो किया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट पास हो गई, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर गया. अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्केल, ये हम दोनों ही केस में लिखेंगे, जो हमने पिछला पढ़ा था एमीटर, इस बार वोल्टमीटर, दोनों में.
scale can be graduated means ऐसा कैलिब्रेट की गई है, ऐसा एडजस्ट की गई है, यानी फुल वाले को अगर हमने कह दिया 50 वोल्ट या V वोल्ट तो उसके आधे निशान पे हम क्या कर देंगे V/2, उसके आधे पे लिख देंगे V/4, इस तरह से ग्रेजुएट करेंगे। ग्रेजुएटेड टू रीड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली। ऑलराइट, ये वैसा ही है जैसे अगर हम इस मीटर में एक जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर आपने 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर डिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट किया 1 सेंटीमीटर से, जैसा हम लोग करते थे मैथ्स में, और आपको 5 किलोमीटर की एक ड्राइंग बनानी है अपने पेपर पे, तो आप ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाता है ग्रेजुएशन इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अब अगर आपसे इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जाए, देन इफेक्टिव resistance will be, just because these are in series, R and G are in series, so effective resistance will be RV, effective resistance of voltmeter। इसको आपको ऐसे सीधे पूछ लेता है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बताइए, so R plus G only and it must be greater than G। ठीक है, ये G से तो बड़ा ही होगा। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। नाउ we will come to some numericals related to this conversion so that we can understand it clearly. So first is this one. It is NCERT problem which is also asked in CBSE 13. So what is this? An ammeter of resistance this much, ammeter having resistance this is given, can measures current up to 1 ampere, 1 एम्पियर तक की, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी पता है, एक एमीटर अलग से दे दिया। What must be the shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to 5 ampere, यानी हमें इसकी रेंज चेंज करनी है। मैंने आपको बताया था कि शंट रेजिस्टेंस को हम रेंज चेंज करने में भी यूज़ करते हैं एमीटर की, तो वही यहाँ यूज़ करना है। सेकेंड, व्हाट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, द गिवन एमीटर कैन बी कंसीडर्ड, मान लीजिए कि एक गैल्वेनोमीटर है, कंसीडर्ड एज अ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि अमीटर गैल्वेनोमीटर से भी अमीटर बनाया जा सकता है। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, तो इसकी मैक्सिमम करंट क्या दिया हुआ है 1 एम्पियर, और मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से जो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या नाप सकता है 1 एम्पियर, गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट पास होती है उसको क्या कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। हेंस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट will be how much? It is Ig 1.0 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है मीटर का, वही रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर हमने मान लिया है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना, इसको हम Rg से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज 0.80 ohms। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सो द टोटल करंट इन द सर्किट, देखिए टोटल करंट इसमें क्या दी हुई है,
what must be the shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to 5 एम्पियर। यानी सर्किट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है करंट की 5 एम्पियर है, यानी हमें सर्किट में जो टोटल करंट है 5 एम्पियर उसको नापना है। तो यानी टोटल करंट कौन सी हो जाएगी, हम पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। टोटल इन दी सर्किट, आई से रिप्रेजेंट कर दो, इट इज 5.0 एम्पियर्स। नाउ सी, सो द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग, अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, मैं एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ। शंट रेजिस्टेंस ये था, यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, इस तरह से यहाँ करंट आई थी, इसमें से गैल्वेनोमीटर में आई जी गई थी, यहाँ गई थी आई माइनस आई जी, ये शंट रेजिस्टेंस एस था, और यानी यही हमको निकालना है। इसको मैं आर एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आर शंट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका पोटेंशियल इसके और इसके बीच बराबर होगा। तो आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई शंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू आई जी मल्टीप्लाइड बाई गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आर जी से जो हमने रिप्रेजेंट किया। इसके बीच का पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल दोनों बराबर है। इसके बीच का पोटेंशियल करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर जी है, ठीक है ना, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, आर एस है, और करंट कितनी है, आई माइनस आई। तो यहाँ पे आर एस कैन बी रिटन एस आई जी अपॉन आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई आर जी। सो दिस विल बी हाउ मच, 1.0 Ig, 5.0 here, and it is minus 1.0 multiplied by Rg is equals to 0.80. So it is 5 minus 1, 4. 1.0 divided by 4.0 multiplied by 0.80. So it is 0.20 ohms. Alright. So this is the required shunt resistance. This is required shunt resistance. Now next part is second part, what is the combined resistance of the ammeter and the shunt। combined आपको पता है कि shunt और ammeter दोनों पैरेलल में है, तो सेकेंड पार्ट इसका ऐसे सॉल्व करेंगे, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ शंट एंड अमीटर will be equals to, this will be parallel, so it is R ammeter can be written as 1 by Rg plus 1 by Rs. So it is 1 by 0.8 plus 1 by 0.2. So it is 1 plus 4 by 0.8. So it is 25 by 4. 5 से multiply कर दिया. So this Ra will be equals to opposite of this 4 by 25. 4 by 25 will be the required combined resistance of ammeter. All right, now next question. See here we have another problem that is related to conversion into voltmeter. Here a galvanometer of resistance capital G can be converted into a voltmeter of range 0 to V volts by connecting a resistance capital R in series with it. Alright, R resistance जब हम जोड़ते हैं तो G resistance का जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या बन जाता है, 0 से V वोल्ट नापने वाला एक वोल्टमीटर बन जाता है। कैसे जोड़ेंगे, ऑब्वियसली सीरीज में जोड़ेंगे। हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड
टू चेंज इट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम 0 to V/2 वोल्ट, मतलब 0 से V वोल्ट बनाने के लिए कैपिटल R जोड़ेंगे। तो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े हैं कि 0 से V की जगह 0 से V/2 रेंज ना पे, ठीक है। तो फॉर दिस सॉल्यूशन इन फर्स्ट केस सी, आपको G में जब R जोड़ते हैं, G इसका R इसका, तो और इसमें ये रेंज क्या है, V वोल्ट हम अप्लाई किया करते हैं, ठीक है ना, B A के बीच में V वोल्ट अप्लाई करने पे R रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तब ये मतलब R रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं तो ये V रेंज का बन जाता। मान लीजिए G में R डैश रेजिस्टेंस जोड़ें सीरीज में, तब ये V/2 रेंज का बनेगा। V/2 रेंज मैक्सिमम वैल्यू कितनी नाप पाएगा, V/2, यानी पहला केस हमारा ये वाला, दूसरा केस हमारा ये वाला। सो इन फर्स्ट केस हियर अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो ये क्या हो जाएगा, IG, मान लीजिए ये IG करंट, देखिए गैल्वेनोमीटर तो सेम है ना, गैल्वेनोमीटर डिवाइस नहीं बदला, यानी गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली जो गैल्वेनोमीटर करंट है, जिसको हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं, वो तो दोनों में सेम रहेगी ना, क्योंकि हमने डिवाइस तो बदला नहीं, तो वो उतनी ही वैल्यू पे फुल डिफ्लेक्शन देगा दोनों केस में। सो IG विल बी इक्वल्स टू, इन दिस केस V/R प्लस G, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन ए, है ना। नाउ इफ R डैश बी दैट रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स टू 0 to V/2 वोल्ट, ठीक है। तो दूसरे केस में IG, तो IG ही करंट रहेगी, वोल्टेज कितना हो गया V/2, और दोनों G और R डैश, यानी G प्लस R डैश इस बार हो गया R की जगह। ये हो गई हमारी इक्वेशन B। देखिए दोनों में IG सेम है, क्योंकि सेम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेट कर दीजिए। V/R प्लस G इज इक्वल्स टू V/2 डिवाइडेड बाई R डैश प्लस G, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए V से V कट गया, ये 1/2 आ गया, यानी ये बनेगा V/R प्लस G, इसको लिख सकते हैं V/2, नीचे ले लें R डैश प्लस G, ठीक है। V से V कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई, सो इट इज़ 2R डैश प्लस 2G, यानी इस वाले को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, V से V कट कर दिया, इट इज़ इक्वल्स टू R प्लस G। वी नीड R डैश, सो R डैश इज़ वन साइड, R प्लस G माइनस 2G, यानी R माइनस G इधर बचा, और 2 भी डिवाइड में आ गया। ये वैल्यू हो गई हमारे उस R की जो हमें सीरीज़ में जोड़ना चाहिए जब हमें V/2 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस क्वेश्चन, it says a galvanometer of resistance capital G is converted into a voltmeter, all right, to measure up to V volts by connecting a resistance R1 in series। R1 सीरीज में जोड़ने पे V वोल्ट का बन जाता है, वो V वोल्ट नापने का। इफ रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, देन इट कैन मेजर अप टू V/2 वोल्ट। अगर R2 जोड़ा जाता है तो इसके अगर सीरीज में R2 जोड़ा जाता है तो V/2 वोल्ट। फाइंड रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर दैट कैन रीड अप टू 2 वोल्ट। यानी V वाला दिया है, V/2 वाला दिया है, तो 2 वोल्ट वाला हमें निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूँगा, क्योंकि मैंने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पीछे आपको करा दिया। फॉर V वोल्ट रेंज, जस्ट बिकॉज वी नीड R1 करंट, R1 रेजिस्टेंस, यानी V वोल्ट पे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, R1 करना पड़ता है ना। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
when R1 is connected, तभी ना V वोल्ट बनता है। तो R1 इज इक्वल्स टू V बाई आई जी माइनस जी। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसी को मैंने ओम्स लॉ से ही किया है, बस इसको इधर रख दिया। ये वोल्टमीटर बनाया हुआ है इसलिए ओम्स लॉ यूज हो रहा है। नाउ व्हेन R2 इज कनेक्टेड, तब ये V बाई टू बन जाता है ना। देन R2 इज इक्वल्स टू V की जगह V बाई टू पुट कर दीजिए, आई जी ही रहेगा और G भी सेम रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं V बाई टू आई जी माइनस जी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन सॉल्व इट। R1 माइनस R2 कर दीजिए। R1 माइनस R2 कर देने पे क्या हो जाएगा, V बाई टू V1 बाई आई जी, ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जी कैंसिल आउट, सो इट इज़ V बाई टू आई जी, ये बचेगा। और यहाँ से चूँकि देखिए अगर हम G के लिए निकालना चाहें तो इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी G इज इक्वल्स टू R1 माइनस टू R2। ठीक है ना। इस तरह से ये दो एक्सप्रेशन हमारा बनता है। अब देखिए ये जो, अब हम मान लीजिए तीसरा वोल्ट जोड़े, तीसरा, ठीक है ना। तो 0 से 2 वोल्ट रेंज का बनाने के लिए मैंने मान लीजिए इफ R3 मेक्स रेंज 0 to 2 वोल्ट, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को रखे रहिए। R3 में क्या हो जाएगा, 0 से 2 वोल्ट, यानी V की जगह 2V रख दें और नीचे IG ही रहेगा, इधर G ही रहेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उठा के पुट करना। तो वैल्यू रख दीजिए, R3 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा 2V बाई जी, यानी V बाई आई जी अलग से निकाल लीजिए। तो V बाई आई जी में 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, V बाई आई जी यहाँ से निकाल के इसमें 2 मल्टीप्लाई, यानी 4 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2। ये पहली इक्वेशन से, इस वाली को जब यूज़ करेंगे तो यहाँ रख देंगे। फिर दूसरी वाली इक्वेशन में जब G की वैल्यू रखना है तो R1 माइनस टू R2, ये सीधे ये पहली, ये दूसरी इक्वेशन ये पहली, तो यहाँ पे सीधे रख दीजिए R1 माइनस टू R2, ये G की जगह आ जाएगा। अब देखिए दोनों को सॉल्व कर लीजिए। R3 इज इक्वल्स टू 3R1 4 माइनस 1, 3R1 माइनस 2R2। ठीक है। तो ये R3 की वैल्यू आई। अब इसी तरह आपको अगर G निकालना हो तो क्या करेंगे, G के लिए क्या है, G की वैल्यू तो हमने पहले से ही लिख लिया ना, G इज इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, पिछली इक्वेशन थे। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ मैंने V बाई आई जी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2 है, ये यहाँ रख दिया V बाई आई जी, लेकिन यहाँ 2 पहले से मल्टीप्लाई थे, यानी 2 टू द 4 R1 माइनस R2, ये आ गया। ठीक है। अब इसके बाद G की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी R1 माइनस 2R2, और ये दोनों आया कहाँ से था, R1 माइनस R2, जब मैंने इसमें से इसको घटाया। और ये वाला कब आया था, जब मैंने इस वाले में से ये 2 मल्टीप्लाई करके इसको मैंने ऐड, ये घटा दिया था। ये R2 में जब 2 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया था, तो ये एक्सप्रेशन G का आ गया। यानी एक बार मैंने G को सर्वाइव कराया, एक बार मैंने G को हटा रिड्यूस किया। ठीक है ना। तो इस दोनों ही एक्सप्रेशन से ये वैल्यू आ गई। ठीक है। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स अपने से भी लगाइए, बाकी हम बोर्ड न्यूमेरिकल अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।